Hello friends, welcome to my classes. I'm Poonam Dua. Today onwards we will do few important questions from a crucial subject, literature and cross-cultural encounters. Detailed videos of all important chapters are already there. You can find the link in description. And today onwards we will do 10 most important questions along with detailed answers of course, and please try to understand the chapter first and then the answer. Please do not ever try to go for rote learning. अगर आप rote learning की या रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे word to word, you may tend to forget it. पहले चैप्टर को समझिए फिर इस आंसर को समझिए. That will really be beneficial for you. Let us proceed to the first question. This is the question that we will discuss in detail in this video. एज आई टोल्ड यू, पहले आप इस चैप्टर को समझिए. चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. एक पूरी लिस्ट दी गई है जिसमें सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एंड दिस चैप्टर इज देयर. कास्ट लॉज बाय ज्योतिराव फूले. Is the slavery to which the Shudras are reduced a mental subjugation as well as a physical one? Answer with reference to caste laws by Jyotirao Phule. चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने के बाद आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि आप राइटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर दें. So here we are talking about Jyotirao Phule, Jyotirao Govindrao Phule, which was his full name, also known as Mahatma Jyotiba Phule, who was an Indian social activist, thinker, anti-caste, social reformer and writer from महाराष्ट्र. और उसके बाद उस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि उस चैप्टर में आखिर है क्या. We know that the chapter is an extract from preface to गुलामगिरी जो कि उन्होंने 1873 में लिखा था and it is today considered to be best of his work. और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एज एन एकेडमिक वर्क भी पढ़ाया जाता है. देखिए आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है. अगर आपको उस चैप्टर में से कोई बहुत अच्छी कोट आती है तो do not forget to quote that particular quote and that to mention the same in bold in your examination. इस चैप्टर में से एक बहुत अच्छी कोट है. The day that reduces a man to slavery takes from him the half of his virtue. जिस दिन कोई इंसान गुलाम बनता है तो उसकी आधी वैल्यू उससे ले ली जाती है. देखिए कितनी खूबसूरत लाइन है. अब देखते हैं वो चैप्टर में कहना क्या चाहते हैं. Since the advent of the rule of Brahmin for centuries in India, the Shudras and Atishudras are suffering hardships and are leading miserable lives. जिस दिन से शूद्रास को ये स्लेव्स का स्टेटस दिया गया है तब से वो लोग बहुत सफर कर रहे हैं और एक मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं बाय द हैंड्स ऑफ ब्राह्मण. ब्राह्मण्स ने जब से रूल करना शुरू किया सिंस दी सेंचुरीज, शूद्रास की कंडीशन मिजरेबल हो गई है. इसके बाद वो कहते हैं कि फिजिकल स्लेवरी, स्लेवरी ऑफ द बॉडी, जो आपसे मेहनत मजदूरी करवाई जाती है एज अ स्लेव, दैट इज बैड इनफ, वो तो है ही खराब. बट मेंटल स्लेवरी, स्लेवरी ऑफ द माइंड, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल, की यू आर नॉट इवन अलाउड टू कीप एनी ऑफ योर थॉट, एनी ऑफ योर व्यू पॉइंट्स. वो स्लेवरी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, सबसे ज्यादा डिग्रेडिंग होती है, सबसे ज्यादा डिमोरलाइज करती है अपने victims को कि they cannot grow on their own, they cannot think on their own, they cannot make any kind of development, any kind of progress in their lives. ब्रिटिश राज ने स्लेवरी को अबॉलिश करवाया था, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन क्या चेक किया गया था कि ठीक से स्लेवरी अबॉलिश हुई है या नहीं हुई? क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? लेट अस सी. The miserable and subjugated multitudes in India were freed from the physical or bodily slavery of Bharts as a result of the advent of the British Raj here. तो बहुत सारे लोग जो कि डिप्रेस थे, सब्जुगेटेड थे, डाउन ट्रॉडन थे, ऐसे मासेस, ऐसे मल्टीट्यूड्स, उनको इंडिया में आजाद करवाया गया था फिजिकल स्लेवरी करने से ऑफ द वेरी एजुकेटेड इन्फ्लुएंशियल भारट्स by the advent of British Raj. But we are sorry to state that the compassionate British government has not yet topped themselves to the important task of providing education to the said masses. ये सभी लोग जिनको आजाद तो करवा दिया गया कि आज के बाद ये लोग स्लेवरी नहीं करेंगे, लेकिन उनके डेवलपमेंट के लिए इस सो कॉल्ड कंपैशनेट गवर्नमेंट ने फिर किया क्या? This is the reason
The Shudras continue to be uninformed, अभी भी enlightened नहीं है, ignored है, and hence their mental slavery regarding the bogus religious traps of the Bharts continue persistent. दिमाग से वो अभी भी slave ही बने हुए हैं क्योंकि कोई enlightenment नहीं आई है, कोई education नहीं आई थी. ज्योतिराव ऑलवेज हेटेड स्लेवरी इन एनी फॉर्म. उनको स्लेवरी से, गुलामगिरी से बिल्कुल नफरत थी. एंड फिजिकल स्लेवरी इज बैड इनफ. ऑफ कोर्स अगर हमें किसी की सेवा करनी पड़ती है, फिजिकली उनके लिए काम करना पड़ता है, एज अ सर्वेंट वर्क करना पड़ता है, वो स्लेवरी तो खराब है ही फॉर आवर माइंड एंड फॉर आवर स्पिरिट. enacted in the name of religion upon the शूद्रास एंड अतिशूद्रास. लेकिन जब वो स्लेवरी माइंड और स्पिरिट की बन जाती है, हमारे दिमाग पर भी हावी हो जाती है और हम इतना दबकर रह जाते हैं कि अपने बारे में खुद कुछ भी नहीं सोच पाते हैं. माइंड भी फॉर्ज्ड हो जाते हैं उस स्लेवरी की हथकड़ियों से, उस स्लेवरी के शैकल से. सो दैट इज अ बिग ब्लॉट ऑन द फेयर नेम ऑफ हिंदुइज्म. कोई भी धर्म क्या कहता है कि हम तो बिल्कुल फेयर है. Okay, कोई भी धर्म, be it Hinduism or any other religion in the world, every religion will say कि we treat everyone equal. फिर आपके ही धर्म में एक शूद्र और एक ब्राह्मण ऐसा क्यों है? अगर है भी तो उनकी ट्रीटमेंट अलग अलग क्यों है? This is what the question of Jyotiba Phule was. जब भी अपने क्वेश्चन को एंड करें तो उस पूरे चैप्टर की एक बेसिक थीम बताइए. यहाँ पर हमारे इस चैप्टर गुलामगिरी या स्लेवरी, इसकी थीम है द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम में किस तरीके के इनजस्टिस होते आए हैं. द बेसिक थीम ऑफ द बुक वाज अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड ज्योतिबा फूले द मराठा पायनियर ऑफ लो कास्ट protests movements condemn the injustice of the caste system in the book गुलामगिरी. और उन्होंने अपनी बुक को डेडिकेट किया है टू ऑल द पेन, टू ऑल द सफरिंग, टू ऑल द हार्डशिप्स एंड डिफिकल्टीज फेस्ड बाय स्लेव्स. जिस भी इंसान को स्लेव बनाकर, गुलाम बनाकर रखा जाता है, वो अपनी लाइफ में किस तरीके की पेन, किस तरीके की सफरिंग्स, किस तरीके की कठिनाइयां फेस करते हैं. दैट हैज बीन टोल्ड इन दिस book. So here we reach to the end of this video, this part of the video. We will continue the series with many more questions from this particular subject. देखते रहिए इन videos को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, and please, as I told in the very beginning, कि try to understand the answer, try to understand the chapter, try to understand the concept. रोट लर्निंग करेंगे तो अपनी एग्जाम तक ही भूल जाएंगे उस चीज को, और अगर समझ कर लिखेंगे, अपने आप लिखेंगे अपने आंसर को प्रॉपरली अपने दिमाग से, अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, देन यू विल टेंड टू स्कोर बेटर. यू मे ज्वाइन द क्लासेस. अभी अपकमिंग एग्जाम के लिए तो क्लासेस नहीं चल रही हैं, बट यू मे ज्वाइन द क्लासेस इन फ्यूचर टू कवर ऑल द टॉपिक्स इन डिटेल इफ यू हैव एनी फर्दर एग्जाम्स ऑफ English Honours, Delhi University. Thanks a lot for watching. Best of luck for your exam, and please do not forget to share and subscribe the channel.